Hello everyone. In this video, we are going to do some very important question from the chapter Lines and Angles of class 9. We have done some important question in the previous video also. Let's continue the third question. In the previous video, we have done two important questions, and these two questions which we are going to do now, they are of same category also. Question is, I have made the diagram here. Question is, we are given two parallel lines. So I'm writing here AB parallel to CD. AB and CD are two parallel lines, and EF is their transversal. EF is transversal. Remember, EF is intersecting side AB, line AB, sorry, at point G, and CD at point H. And one more thing we are given, and GM and HN are given bisectors of this pair of corresponding angles. Question ये है that in this case these two lines are parallel and we are asked to prove the bisectors of one pair of corresponding angles also parallel. There are two questions. First question में हम करेंगे when the lines are parallel we need to prove the bisectors parallel, and in the second question bisectors will be given parallel और हमें प्रूव करना होगा कि lines are parallel. Firstly, we are given that lines are parallel and bisectors parallel prove करना है, and GM and HN are bisectors of corresponding angles, angle EGB and angle GHD respectively. Angle EGB and angle GHD respectively. And what we need to prove? प्रूव करने को क्या बोला है कि ये बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, GM पैरेलल टू HN. अब देखना ध्यान से इसका सॉल्यूशन. वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल. नाउ सी here, as the lines are parallel, so this is a pair of corresponding angles, hence these two angles will be equal. So proof angle EGB is equal to angle GHD. Why they are equal? Because this is a pair of alternate interior angles. Now, the whole angles are given equal, right? And these are the bisectors of these angles. Bisectors के केस में क्या लेते हैं हम? What we take? We take halves. So taking halves on both sides. Because what bisector does? Bisector divides the angle into two halves. That's why we are taking halves. अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होता है कि हमने हाफ कौन सा लेना है, वही चूज करना होता है. देखो मैं थोड़ी सी डायग्राम यहाँ से इरेज करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से हाफ्स हमारी हेल्प करने वाले हैं. वेदर वी नीड टू टेक द अपर हाफ्स और वी विल टेक द लोअर हाफ्स और वन अपर वन लोअर. लेट्स सी कैसे हमारी हेल्प होती है. अब देखना ध्यान से. व्हेन आई रब द डायग्राम, आपने अपनी डायग्राम रब नहीं करनी है, समझाने के लिए बना रहा हूं. दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन से हाफ्स आपकी हेल्प करने वाले हैं. अब देखना ध्यान से. अगर मैं ये वाले हाफ्स लूं, राइट, ये वाले हाफ्स लूं तो ये भी इक्वल आ जाएंगे. ये नाम क्या है इसका? एंगल EGM और इसका एंगल GHN. दे आर इक्वल. अब देखें जरा ध्यान से. These are two lines. ये उनका ट्रांसवर्सल, तो ये कैसे हैं? above the line, to the right of the transversal, to the right of the transversal. Which type of angles are these? These are again corresponding angles. But this is a pair of corresponding angles. और corresponding angles equal हो तो what happens? You know, in that case the lines are parallel. तो कौन है यहाँ पे लाइंस? यहाँ पे ये हमारे बाइसेक्टर्स हैं. hence GM, therefore we can say GM parallel to HN. अब मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूं क्योंकि आपने वो रब नहीं करनी है. आपको सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए कि कौन से हाफ्स
हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने वो डायग्राम रब किया था। आपने अपनी डायग्राम में बिल्कुल उसको वैसे ही बना रहने देना है। देखो ये था डायग्राम हमारा, ठीक है। अब हमने the whole angles were equal because they were here is a mistake. This is a pair of not alternate angles, they are corresponding angles, sorry, and this is also pair of corresponding angles. See, हमने जब ये complete angles लिए, corresponding angles equal, right, because the lines were पैरेलल, corresponding angles equal। जब हमने halves लिए तो कौन से halves choose करने हैं वो मेन होता है इस क्वेश्चन में। So which halves we need to choose? The upper half in this case, right? Now we'll take the second question, the converse of that question. उस क्वेश्चन में क्या था? The line previous question में these lines were parallel, naming सारा कुछ सेम है, डायग्राम सेम है। These lines were given parallel और ये बाइसेक्टर्स जो corresponding angles के हैं इनको parallel प्रूव करना था। अब उल्टा same case, but here the bisectors of these corresponding angles are given parallel and we need to show these lines parallel. So AB and CD are intersected by transversal EF, GM and HN are bisectors of corresponding angles, angle EGB and angle GHD respectively, and these bisectors are parallel here. GM is parallel to HN, and what we need to prove? We need to prove that the lines are parallel. AB parallel to CD. See, proof is very short and simple again. This is, firstly, as these bisectors are parallel, as GM is parallel to HN, और इनका ट्रांसवर्सल कौन सा है? GM and HN का ट्रांसवर्सल is same, EF, and EF is their transversal, so therefore ये ट्रांसवर्सल है, तो remember these angles, upper angles are equal because ये इन पैरेलल बाइसेक्टर्स के इस ट्रांसवर्सल के साथ सेम पोजीशन डिफरेंट लोकेशन वाले एंगल्स हैं। मतलब कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल EGM इक्वल्स टू एंगल GHN, EGM इक्वल टू एंगल GHN। Why they are equal? Because they are corresponding angles। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, कंप्लीट एंगल EGB एंड एंगल GHD के कंप्लीट एंगल्स, आई मीन टू से ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये वाले, ठीक है। सो इनके ये बाइसेक्टर्स हैं, तो इसका डबल अगर मैं कर दूं, रिमेंबर ये दोनों इसके हाफ्स हुए होल एंगल EGB के, तो इसका डबल कर दिया जाए तो होल एंगल्स विल गेट। सो टेकिंग ट्वाइस ऑन बोथ साइड्स, twice on both sides means we will multiply both sides by 2. So twice of this angle we get the whole angle, that is angle EGB, and twice of this angle we get the whole angle, that is angle EGHD. Now see what we got these two angles equal। लेकिन फिर से देखें, this is a pair of corresponding angles again। Now ये किन एंगल्स के corresponding, किन साइड्स के corresponding angles हैं, किन लाइंस के corresponding angles हैं? ये हैं corresponding angles AB and CD के with transversal EF। But this is a pair of corresponding angles again। So therefore जिन लाइंस के corresponding angles हैं वो लाइंस पैरेलल होंगी। वो कौन सी लाइंस हैं? AB and CD। So therefore AB parallel to CD। Now we'll take the third question of the same category, parallel lines के related question है। AB is parallel to CD given and EF is the transversal and the bisectors of these two angles, which two angles? BGH and GHD। The bisectors of these two angles intersect at this point
P. This is we are given and we asked to prove that this angle GPH, this one, it is of 90 degree. ये हमें प्रूव करना है. See, very simple question, very short question. Let's give its proof. Firstly, ये जो बाइसेक्टर्स दिए हैं हमें, देखना ध्यान से देखेंगे प्लीज. एंगल BGH एंड एंगल GHD, ये वाले एंगल्स. See it carefully. ये कैसे एंगल्स है भला? Which type of angles are these? These are a pair of co-interior angles. Which type of angles? These are co-interior angles. और parallel lines में co-interior angles की क्या property होती है? They are supplementary. Supplementary means their sum is 180 degree. So let's apply that. Now angle BGH plus angle GHD. What is that? Equal to 180 degree. Why? Because they are co-interior angles. कौन से होते हैं co-interior angles? Interior angles on the same side of transversal. Interior angles on the same side of transversal. चाहे वो दोनों right में हो like this या दोनों left में हो. ठीक है? So they are corresponding co-interior angles. So their sum is 180 degree. तो एक बात आपको बताई है कि जब भी एंगल्स के हमें बाइसेक्टर्स दिए हों तो क्या करना होता है हमें? We need to take their halves. So taking halves on both sides. Taking halves on both sides. So half of angle BGH plus. जब हम हाफ्स लेंगे तो एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि each and every term we need to take half of each and every term on both sides. लेफ्ट हैंड साइड में जितनी टर्म्स हैं उनके हाफ्स लेने हैं, राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स हैं सबके वो ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स. अब फिर से वही बात आ गई, जब हाफ्स लिए तो हाफ सिलेक्ट करने हैं. अब हाफ्स हम वो सिलेक्ट करेंगे जो हमें हमारे आंसर तक ले जाने वाले हैं. ठीक है? अब विच हाफ्स वी आर गोइंग टू चूज. इस एंगल के ये दो हाफ्स हैं, इस एंगल के ये दो हाफ्स हैं. ठीक है? सो विच हाफ, ये इंटीरियर हाफ्स हमारी हेल्प करने वाले हैं. देखना, एक ये वाला हाफ, ठीक है, और ये वाला हाफ. तो इंटीरियर हाफ्स लेते हैं. आप इन एंगल्स की नंबरिंग भी कर सकते हैं. सी आई गिव द नंबरिंग 1 and 2, इजी कर लेते हैं. सो BGH का हाफ कौन सा लेने वाला हूं मैं? द इनर वन. नंबर डाल दिया मैंने, एंगल 1 प्लस GHD का हाफ एंगल 2. इसका लोअर हाफ, इसका अपर हाफ, क्योंकि यही हमें हेल्प करने वाले हैं. हाफ ऑफ 180 इज 90 डिग्री. अब बस सिंपल लास्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन. In this you can find one triangle here. Which one? GPH. बस इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना and we'll get the answer. In triangle GHP, applying by angle sum property, you know angle sum property. ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? It is 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनको नंबरिंग डाली हुई है मैंने, प्लस एंगल GPH. What is that equal to? 180. See 1 plus 2, एंगल 1 plus 2 की वैल्यू निकाल रखी है हमने, कितनी है? 90 डिग्री. ये यहां से पुट कर देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 डाल दो. ठीक है? सो 1 plus 2 की वैल्यू कितनी है? 90. यहां पुट करो. GPH इक्वल टू 180 डिग्री. यहां मेंशन कर देना यूजिंग 1, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने यहां पे पुट की. राइट? Take 90 to the other side and we are going to get our required result. 180 minus 90, you know that GPH, that is equal to 90 degree. This is how we'll get the solution. Now this is again one of the very important questions in this chapter. Diagram देखना है इसमें. हमें दो एंगल्स दिए हैं. वन एंगल इज गिवन एंगल ABC एंड एंगल DEF. ये दो एंगल्स दिए हैं और इसमें गिवन क्या है? इसमें these two arms BA parallel to ED ये दिया है and this arm
BC is parallel to this arm EF, ये दोनों दिए हैं। आप एक काम जरूर करना होता है आपने, वो क्या, जब भी अपनी डायग्राम में आपने पैरेलल लाइंस को मार्क करना है तो हमेशा ऐसे एरोज लगा के मार्क करना है। लाइक आई हैव मार्क्ड सिंगल एरोज हियर, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल, राइट, दीस टू रेज आर पैरेलल हियर। एंड सेम हियर मैंने डबल एरोज लगाए हैं, मींस दीस टू आर पैरेलल। ये दोनों आर्म्स जो हैं इस एंगल की, ये पैरेलल हैं। इक्वालिटी को कट्स लगा के, सिंगल कट्स, डबल कट्स, ट्रिपल कट्स लगा के मार्क करना, और पैरेलल लाइंस को एरोज लगा के, ये जरूर काम करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और पॉइंट ज्योमेट्री में, एक बड़ी खास बात, एक और इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें आएगा। क्वेश्चन बनता कैसे है? देखो, क्वेश्चन बनता है समथिंग इज गिवन टू अस। वो गिवन क्या होता है? वो गिवन एक हिंट होता है हमारे लिए, और उस हिंट को लेके उसको आगे प्रोसीड करना है, और वील समवेयर गेट द रिक्वायर्ड आंसर, जो प्रूव करने को बोला गया है। तो गिवन इज अ हिंट फॉर अस, राइट। उस गिवन को लेके, उस हिंट को लेके आगे चलते हैं ताकि हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच जाएं। कोई भी क्वेश्चन हो वो ऐसे ही बनता है, गिवन है समथिंग, और उस गिवन के बेस्ड पे हमें कुछ प्रूव करने को या कुछ फाइंड करने को बोला होता है, राइट। तो वैसे ही चलते हैं। अब ज्योमेट्री में हमारे पास एक अथॉरिटी होती है, हमारे पास एक फ्रीडम होती है हमारे पास। वो क्या? दैट इज कि इफ वी फील दैट द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू गेट द आंसर, राइट। अगर गिवन इंफॉर्मेशन हमें लगे कि ये सफिशिएंट नहीं है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ और दिया होना चाहिए था, तब हम रिक्वायर्ड आंसर पे पहुंच सकते थे। तो वहां पे ज्योमेट्री में हमें एक फ्रीडम दी गई है, दैट फ्रीडम इज कॉल्ड, दैट अथॉरिटी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। उस स्टेप को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या चीज है? कंस्ट्रक्शन क्या है? दैट मीन्स वी आर अलाउड टू डू एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। रिमेंबर, कहीं किसी के पैरेलल लाइन बनानी है, बना लो, किसी एंगल को बाइसेक्ट करना है, कर लो, कहीं पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एनीथिंग वी कैन डू, कोई भी कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि दैट कंस्ट्रक्शन शुड बी हेल्पफुल, वो हमें हमारे आंसर तक जाने के लिए हेल्प करे। ऐसा ना हो कि हम ऐसे अपनी डेकोरेशन के लिए वो कोई कंस्ट्रक्शन बना लें और वो हमें हेल्प करे ही नहीं, ठीक है। तो वो जो भी कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, कुछ भी कर सकते हैं हम, बट दैट शुड बी यूजफुल। और एक चीज वैलिड भी होनी चाहिए वो, ठीक है, इनवैलिड ना हो जाए कोई, मतलब वैलिड कंस्ट्रक्शन करनी है और वो यूजफुल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को मुझे इक्वल प्रूव करने को बोला है। फिलहाल तो नहीं हो रहे, ये गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास सफिशिएंट नहीं है कि मैं इन दोनों को कैसे प्रूव कर दूं इक्वल, ठीक है। अब ये टूल जो है मेरे पास, द फ्रीडम, द अथॉरिटी, द टूल, जो मर्जी बोल लो, कंस्ट्रक्शन, इसकी हेल्प लूंगा मैं। सी व्हाट आई विल डू, मैं इस रे जो है ईडी, इस आर्म को नीचे को थोड़ा प्रोड्यूस कर देता हूं। प्रोड्यूस मींस एक्सटेंड करना। और ये कंस्ट्रक्शन जब भी करे ना आप, एक चीज ध्यान रखना, उस कंस्ट्रक्शन को ना आपने डॉटेड में रखना, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि डॉटेड ही बनाना है, बट डॉटेड में थोड़ा अलग सा दिखता है, डिफरेंट दिखता है, मतलब ये देखने से ही लग जाता है पता कि इट वाज नॉट द गिवन पार्ट, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है। इस रे डी ई को प्रोड्यूस किया। रिमेंबर, जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, इसमें एक बात और बड़ी ध्यान रखनी है। सपोज करो मैंने बोला प्रोड्यूस ए बी, और एक केस में मैंने बोला प्रोड्यूस बी ए। सो क्या ये दोनों सेम मीनिंग है इनका मेरे लिए? ये देखना, जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी लाइन को, रे को, या एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस या एक्सटेंड एक ही मीनिंग होता है। जब भी प्रोड्यूस करते हैं तो हियर डायरेक्शन मैटर्स, यहाँ डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। वो डायरेक्शन आपने बहुत ध्यान देना है उस डायरेक्शन पे। जब बोला गया कि प्रोड्यूस ए बी, तो दैट मींस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और जब हमें बोला गया है प्रोड्यूस बी ए, तो बी से ए की तरफ। अगर मैं बोलूं प्रोड्यूस ई डी, तो ई से डी की तरफ आगे जाना है। अगर मैं बोलूं प्रोड्यूस डी ई, तो डी से ई की तरफ को प्रोड्यूस करना है।
तो ये डायरेक्शन यहाँ बहुत मैटर करती है जब भी हमने किसी साइड को प्रोड्यूस या एक्सटेंड करना होता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। सो हमने DE को प्रोड्यूस किया कि ED को किया? DE या ED, रिमेंबर सेम मीनिंग नहीं है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते तो सेम मीनिंग था, DE ED मैग्नीट्यूड एक ही बात है, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो बोथ आर डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ध्यान रखना प्लीज, हमने DE को प्रोड्यूस किया है, तो क्या लिखना हमने? प्रोड्यूस DE, D से E की तरफ टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट, इसको कुछ नाम दे देते हैं, से M, टू इंटरसेक्ट BC at point M, राइट? टू इंटरसेक्ट BC at point M। ये कंस्ट्रक्शन की हमने, और कंस्ट्रक्शन मैंने समझाया आपको कि क्या होती है, क्या हमें अलाउड होता है, क्या वैलिड है, कैसे करनी है, ठीक है? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब लेट अस सी कि ये कंस्ट्रक्शन मुझे हेल्प कैसे करने वाली है। मैं थोड़ा काम इजी करूं, मैं एंगल्स की नंबरिंग कर दूं, इस एंगल को 1 डालूं, इसको 2, ठीक है, एक ये बना, इसको 3 डाल देता हूं, राइट? सी नाउ, अब आपको काफी हद तक सॉल्यूशन दिखने लग गया होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। देखो, ये दो लाइंस रेज पैरेलल थी और इनका ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या हो गए? दे आर व्हिच टाइप ऑफ एंगल्स दीज आर? They are of same position and different location वाले angle, same position, right side above the line, remember they are called corresponding angles. So angle 1 is equal to angle 3. Why G? Because these are corresponding angles, ठीक है? Now also angle, अब देखना ये वाली दोनों भी पैरेलल हैं। एरोज मेरी बहुत हेल्प करते हैं पैरेलल लाइंस बताने के लिए, याद रखना है इस बात का, ठीक है? पहले सिंगल एरोज वाले थे पैरेलल, अब ये डबल एरोज वाले पैरेलल लो। अब ये पैरेलल लाइंस हैं, राइट? तो इनका ट्रांसवर्सल कौन है? ये है, ठीक है? सो इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं? ये है 2 and 3, राइट? सो 2 and 3 अगेन देखो, above the line, to the right of the transversal, to the right of the transversal। कैसे? अगेन corresponding angles, सेम पोजीशन डिफरेंट लोकेशन वाले एंगल्स। सो पैरेलल लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो आल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अगेन दे आर व्हिच टाइप ऑफ एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेशक आप यहां पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल मेंशन कर सकते हैं, राइट? नाउ सी, इसको इक्वेशन 1 डालूं, इसको इक्वेशन 2 डालूं। लेट्स कंपेयर फ्रॉम 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, व्हाट कैन वी से? इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल आ रही है, कौन सी? Which one? The right hand side. Right hand side is equal. अगर दो इक्वेशंस की कोई भी एक साइड इक्वल हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली इक्वल बन जाती है। तो यहाँ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, hence what is the conclusion? Conclusion is their left hand sides are also equal. Angle 1 equal to angle 2. What is it? This is what we were asked to prove. So ये जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, these are very important question. बेसिक्स जो ज्योमेट्री के हैं उन पे हमेशा स्टिक रहना है, बेसिक्स नहीं भूलना है। रिमेंबर, ज्योमेट्री मींस लॉजिकल रीजनिंग। जब भी हम कोई चीज अप्लाई करते हैं, कुछ भी हम लगाते हैं वहां पे, तो हमें उसमें लॉजिक देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये जैसे ये दो एंगल्स इक्वल लिखे तो क्यों है इक्वल। सो लॉजिक हमेशा रहता है ज्योमेट्री में, तो लॉजिकल रीजनिंग चलती है। जब भी कोई चीज बताई तो उसको आप रीजनिंग देनी है कि ये कहां से आती है। तो इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से करना है। थैंक यू।